Hello friends, good evening to all. Welcome back to my YouTube channel Game Education. तो फ्रेंड्स ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଦ୍ଧିତର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ଜାଣିବୁ ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଦ୍ଧିତର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତଦ୍ଧିତକୁ କିପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିହେବ ଏବଂ ତଦ୍ଧିତର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଯିବି ଠିକ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଯେଉଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ତାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ভিডিওটি লাইক পছন্দ আসছে তো আপনার ভিডিওটি লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং সেয়ার করবে এবং আসন্তা কালি পাই কোন আপনার ডিমান্ড রহব মতো কহবে মু সেই হিসাবে আপনার এমসিক্যু আলোচনা করি ঠিক আছে তো চলতু আজর ক্লাসটি আরম্ভ করা আজর প্রথম প্রশ্ন অছি ভগিনী যুক্ত এয় ভগিনেয় এহা হচ্ছে এখানে এই যে এয় প্রত্যয় লাগিছি কেউ অর্থরে এ প্রত্যয় প্রভূত হয়েছে ঠিক আছে ভগিনী যুক্ত এ ভগিনেয় ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ନା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆମର କୃଦନ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଆମର ତଦ୍ଧିତ ପଦ ନୁହେଁ কিংবা তদ্ধিত পদ এইপরি তিନି প্রকার প্রশ্ন আসব আপন তিନି প্রকার প্রশ্নକୁ মেন্টালি প্রিপেয়ার ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କୃଦନ୍ତ ଠାରୁ ତଦ୍ଧିତ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ସହଜ କୃଦନ୍ତରେ ଆମକୁ ଧାତୁକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୃଦନ୍ତରେ ଆମର ତଦ୍ଧିତରେ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବେ এটি তাহলে আমার প্রশ্নরে তিন প্রকার প্রশ্ন আসব যে এখানে কেউ প্রত্যয় হয়েছি কেউটি তদ্ধিত পদ নুহে বা কেউটি তদ্ধিত পদ আউ গোটে প্রশ্ন আসব কেউ অর্থরে প্রত্যয় যোগ হয়েছি তো এই প্রকার প্রশ্ন আসিব তেমন এটি প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন যে ভগিনী যুক্ত এ ভগিনেয় এটি যে এ প্রত্যয় যোগ হয়েছি কেউ অর্থরে যোগ হয়েছি ঠিক আছে তো আমার সঠিক আনসার ভগিনেয় কহিলে কোন ভাগিনেয় কহিলে কোন বুঝছ যে আপত্তি অর্থরে হব কি সম্বন্ধ অর্থরে হব না জাত অর্থরে হব না অধ্যয়ন অর্থরে দেখুন আপত্তি অপত্য অর্থরে বা সন্তান সন্ততি ক্ষেত্রে আমি অপত্য অর্থরে প্রত্যয়କୁ ব্যবহার করতাম ঠিক আছে অপত্য অর্থরে এ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে এটি সঠিক আনসার কোন হইলা না অপত্য অর্থরে এ প্রত্যয় পরবর্তী প্রশ্নକୁ ଯିବା যে বৃত্তি অর্থরে ই প্রত্যয় যুক্ত শব্দটি কেউঠা ঘଣ୍ଟି ଚୈତି ଚାକିରି ନା ଗହଳି এটা ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ କୋଉଠି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆମର ଚାକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ମତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେବି ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ମୁଁ ডিসকসন କରୁଛି ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଲସେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ମତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମତ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ଆଉ ଚାରୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ମତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବତ ଗୋଟେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି এই ମତରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ମତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ ନା ମାନ ହେବ বত প্রত্যয় লাগিলে সমস্ত পদটি হব বান হব ঠিক আছে এইপরি ভাবে মনে রাখবে মত যদি হুয়ে মান বত যদি হুয়ে বান ঠিক আছে এইপরি ভাবে মনে রাখবে যেপরি ভাবে এটার পচারছি মত প্রত্যয়ের উদাহরণ নুহে দেখন্তু মান ଅଛି এবং এটার মধ্যে মান ଅଛି কিন্তু আমার সঠিক আনসারটি কোন হবে আমার প্রকৃতি প্রত্যয় বাহার করদেবা যেতবে আমি শ্রী সহিত মত প্রত্যয় যোগ করছেন তাহা যাচ্ছে শ্রীমান বুদ্ধি সহিত মত প্রত্যয় যোগ করছেন তাহা যাচ্ছে বুদ্ধিমান হনু সহিত মত প্রত্যয় যোগ করছেন তাহা হচ্ছে
हनुमान हनु सहित मत प्रत्यय जोग कर हनुमान ठीक अच्छे किंतु देदीप्यमान कहले देदीप्य सहित मान प्रत्यय जोग हो तेणु एठारे सठिक आंसर आमर देदीप्यमान यह मत प्रत्यय है मान प्रत्यय रही ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर होगा ऑप्शन घ हो यार सठिक आंसर मन रखिए जे मत आउ बत रु गोटे क्वेश्चन आसबार बहुत चांस अच्छी परवर्ती प्रश्न को जीवा अच्छी अर्थ रे इन प्रत्यय किए एक उदाहरण नुहे अच्छी अर्थ रे इन प्रत्यय देखो क्रोधी मेधावी गुणी आ धनी इजी गोटे बाट मन रखिए जो दीर्घकार देखिए सेठी इन प्रत्यय जुग हो ठीक अच्छे इन किंबा बिन ये दुईटी प्रत्यय जुग हो इन प्रत्यय ना बिन प्रत्यय अच्छी अर्थ रे इन प्रत्यय कौटी जुग हो क्रोध जदि आम तार प्रकृति प्रत्यय करवा क्रोध सहित इन प्रत्यय जोग कले आमर क्रोधी हो जाउछि मेधावी मेधा सहित जिते आम बीन प्रत्यय जोग कर मेधा सहित बीन प्रत्यय जो जोग कर मेधावी हो जाउछि गुण सहित इन प्रत्यय गुणी आउ धन सहित इन प्रत्यय धनी तो यहीपरि भाव में आम चार्टे प्रकृति प्रत्यय को एनालिसिस करदे जो कि सठिक आंसर बाहर गला मेधावी जो इन प्रत्यय जोग न बीन प्रत्यय जोग हो ठीक अच्छे तो ये सठिक आंसर होगा ऑप्शन बी मेधावी परवर्ती प्रश्न को जीवा अपत्य अर्थ रे अप्रत्यय होइथिबा शब्दटी को बाछ अपत्य अर्थ रे आपण माने वीडियो लास्ट पर्यंत रहंतु मु आपण मानकु पूरा प्रत्यय कहिदेबी क्यों प्रत्यय क्यों अर्थ रे क्यों प्रत्यय पढ़ी कि जिवे आपण माने तार ऊपर विशेष गुरुत्व दे कि जिवे क्वेश्चन आसबार बहुत संभावना अच्छी अपत्य अर्थ रे अप्रत्यय होइथिबा शब्दटी को बाछ देखंतु संतान संतति बा अपत्य अर्थ रे आमे जानिछंती अप्रत्यय हुए वसुदेव वासुदेव लाघव शांत आउ माघ अपत्य अर्थ रे देखंतु वसुदेव वसुदेव तांकर पुत्र को आमे वासुदेव बोली कहि दऊ वसुदेव युक्त अ कोन गले वासुदेव ये आम प्रथम ऑप्शन रु आंसर पाई गले जे अपत्य अर्थ रे पुत्र बा संतान संतति क्षेत्र रे अप्रत्यय हुए आठी वासुदेव रे अप्रत्यय होई अछि ठीक अछि तो यदि आम कहबा एठी आउ कोन अछि एठी माघ माघ माघरे अप्रत्यय होइछि ठीक अछि माघरे अप्रत्यय होइछि किंतु को अर्थ रे ना युक्त अर्थ रे केमति युक्त अर्थ रे यदि आमे मघा सहित अप्रत्यय को जोग करिबा मघा सहित अप्रत्यय जोग कले हमर माघ हुए जेतक हमर वर्षक 12 मास रही से सबु रे अप्रत्यय जोग करा जाय एटा मन रखिबे अप्रत्यय जोग करा जाय वर्षक हमर जति वैशाख ठारू समस्त मास गुडी करे अप्रत्यय जोग करा जाय आउ शांत शांत रे हम आपण जानछंती सम युक्त त सम धातु सहित त प्रत्यय शांत हो गला लाघव लघु सहित जेतेबेले हमें अप्रत्यय जोग करछंती कोन हे होची ना लाघव आपण ए ऑप्शन गुडी को बारंबार धर गोटे क्वेश्चन रे आ अन्य ऑप्शन गुडी को आपण सुनिबा द्वारा से ऑप्शन मध्ये जदी क्वेश्चन रे आसे आपण माने करि दबो एथिरे जदी हमें 20 25 टी हमें क्वेश्चन एनालिसिस करंती ता सहित हम ऑप्शन को एनालिसिस कर देना मध्ये सेटा 100 टा क्वेश्चन सहित समान हिजो कोन आपण माने टिके ध्यान सहित वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु देखंतु एटी कोन हला ना माघरे अप्रत्यय जोग हिची समयुक्त ती समयुक्त तो शांत लघुयुक्त लाघव लघुयुक्त लाघव ये प्रश्न आसब लघुयुक्त लाघव ये जो अप्रत्यय लगी क्यों अर्थ लगी ना भाव अर्थ मन रखिए भाव अर्थ रे लगी आ भाव अर्थ रे कौन ना भाव भाव कहले हमर कौन गोटे अवस्था को बुझाउथिबो गोटे कर्म को बुझाउथिबो ए प्रकार भाव को भाव अर्थ रे अप्रत्यय जोग होइछि आ संतान संतति क्षेत्र रे हमर अपत्य अर्थ रे अप्रत्यय जोग होइछि तो सठिक आंसर हो गला हमर वासुदेव परवर्ती प्रश्न दैत्य एठारे ज प्रत्यय क्यों अर्थ रे व्यवहृत होइछि अपत्य अर्थ रे अच्छी अर्थ रे संबंध अर्थ रे ना जात अर्थ रे दैत्य एठारे ज प्रत्यय अपत्य अर्थ रे व्यवहृत होइछि दैत्य कहले गोटे जने व्यक्ति विशेष को बुझौछि ठीक अछि से जने कहार संतान या प्रकृति प्रत्यय जे जानिथे मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे या प्रकृति प्रत्यय कोन हेबो ठीक अछि आउट परवर्ती प्रश्न अछि गुरुयुक्त बत कौन हेबो प्रकृति प्रत्यय गुरुयुक्त बत गरिष्ठ गुरु गुरुवत ना गुरुत्व
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ବତ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ବତ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ହବ, ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ହବ, ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ବତ୍ ଗୁରୁ ବତ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ଗରିଷ୍ଠ ମାରିଦେବେ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଆସିବ କି ଗରିଷ୍ଠ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗରିଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ବତ୍ ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁରୁ ବତ୍। ঠিক ଅଛି, এই ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ, ଏହା କଣ ନା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ, ଲଘିଷ୍ଠ, ବରିଷ୍ଠ, ଏସବୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରଘୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ରାଘବ, ଏଠାରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ, ନା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ, ନା ଆପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରଘୁ ଯୁକ୍ତ ରାଘବ, ଆମେ ରାଘବ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ? ରାମକୁ କହିଥାନ୍ତି ରାଘବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଘବ ଏହା ହଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କଣ ହେବ? ପାର୍ଥ, ପାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଅ, ପୃଥିବୀ ଯୁକ୍ତ ଅ, ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ, ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ। ପାର୍ଥ এটা ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପଡିଛି, ଓଏସଟିଟି ରେ ପଡିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଓଟିଇଟି ରେ ପଡିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବେ ଯେ ପାର୍ଥ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ ପାର୍ଥ, ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ ପାର୍ଥ, ଯାହାକି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ପାର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଯେ କୁଟୁମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍, କୁଟୁମ୍ବୀ, କୁଟୁମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ କୁଟୁମ୍ବୀ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ, ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ନା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ? କୁଟୁମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ କୁଟୁମ୍ବୀ, କୁଟୁମ୍ବ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କୁଟୁମ୍ବୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କୁଟୁମ୍ବୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବୀ ଯାହାର କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବୀ ବୋଲି କହିବା। କୁଟୁମ୍ବୀ, 5 କୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାର, 7 କୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାର। ତ କୁଟୁମ୍ବୀ ଅର୍ଥ ଯାହାର କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି ତାକୁ କୁଟୁମ୍ବୀ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଏହା ହେଇଯିବ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠି ଏକ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶେ ଆମେ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଲେ ଆମେ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସୌଜନ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କଣ ହେବ? ସୌଜନ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ଆମେ ଯଦି ସୁଜନ, ସୁଜନ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଇଗଲା ଆମର ସୌଜନ୍ୟ। ସୁଜନ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲାଘବ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଅତିଥି ଯୁକ୍ତ ୟ ଆତିଥ୍ୟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଠି ସିକ୍ତ ଆଉ ବଳି ରହିଲା। ସିଚ୍, ସିଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ସିଚ୍ ଧାତୁ ସହିତ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବାରୁ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବାରୁ ତାହା ହେଲା ସିକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସିକ୍ତ। ମନେ ରହିଲା? ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା। ସୃଜନ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଏଠି ସୃଜନ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଠି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ମନେ ରଖିବ, ସୃଜନ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ ଜନ ଯିଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସୃଜନ। ତ ଏଠି ଭଲ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆତିଥ୍ୟ, ଆତିଥ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଆତିଥ୍ୟ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେବା କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆତିଥ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ ଅଛି, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଇଏ ହେଉଛି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସୃଜନ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ? ସୃଜନ ହେଇଗଲା ଆମର ଭାବ ଅର୍ଥରେ। ଲାଘବ କହିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲାଘବ, ଇଏ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। କୋଉ ଅର୍ଥରେ? ନା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 11ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଲେଣି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର। ନେକ୍ସଟ
जो आपनकर जहाँ डिमांड अच्छी कि आपनकर को टॉपिक ऊपर नेक्स्ट मु वीडियो आनिबी माने इवनिंग टाइम रे और मॉर्निंग टाइम रे जेमती एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास चलीची ताहा चलिबो आउ इवनिंग टाइम रे आपनकर डिमांड अनुसार मु आपनकर पई प्रश्न आनिबी तो आपनकर डिमांड जहाँ थिबो मते कमेंट माध्यम जणेबे निश्चय भाबरे आसंता काली इवनिंग नै कोइ आसी ठीक अछि तो परवर्ती प्रश्न को जिबा जो मैंने चैनल टी को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना दया चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो टी पसंद आसले निश्चय भाव में लाइक करंतु जो द्वारा कि मते आपण मानक पई परिश्रम करिया पई खुशी लागिवो जे मते लागिवो कि आपण सतरे मो सहित जोड़ी हेकि रहउछन्ति परवर्ती प्रश्न केउठी भाव अर्थ रे अप्रत्यय केउठी भाव अर्थ रे अप्रत्यय बोली पचारछि शैव बैशाख गौतम ना मौन भाव अर्थ रे भाव कहले आमे जानिचंती भाव ए जो भाव एठी गोटे भाव कहले गोटे गुण को बुझौथो ठीक अछि किंबा गोटे अवस्था को बुझौथो शैव बैशाख गौतम ना मौन जदि आमे बुझिबा जे यार सठिक आंसर हेइबो जे मौन रहउची मौन भाव जहार अछि ताको आमे ताको मौन बोली कहितांती अर्थात जे सब बेले कौन रही था मौन रही था मौन गोटे भाव को बुझाऊँ हाँ तो मुनि माने साधारणतः मौन रही था मुनि युक्त अ मौन तो ये ही गला हमर सठिक आंसर कौन हो मुनि युक्त अ मौन ये हो हमर भाव अर्थ रे अप्रत्यय होछि ठीक अछि भाव अर्थ रे अप्रत्यय होछि मुनि मानकर गोटे गुण होछि से माने मौन रहंती सर्वदा तो भाव अर्थ रे अप्रत्यय होछि यार सठिक आंसर जदि आमे एठी शैव शैव को जदि प्रकृति बतय करिवा कोन हबो ना शिव युक्त अ गोटे सहित आम अन्य मानक डिस्कसन करदवा जद्वारा कि से भी आपण मानकर मन रही ये सब ऑप्शन गुडी हम रखी सब ऑप्शन गुडी को एनालिसिस करिया पई सब ऑप्शन गुडी को इंपोर्टेंट सेथिरे मु चाहितले क्वेश्चन बनै परथांती किंतु से क्वेश्चन ऑप्शन रु ही मु क्वेश्चन बनै पई चेष्टा करछि शिव युक्त अ एठी जदि मु कहबी एठी जो अ प्रत्यय लागि छि एहा केउ अर्थ रे अ प्रत्यय लागि छि सॉरी शिवयुक्त अ शिवरे शैवरे एटी अप्रत्यय लागिछि जेहेतु गोटे उपासक बा भक्त बा उपासक क्षेत्र रे अप्रत्यय लागिछि मन रखिबे बैशाख बैशाख विशाखा युक्त अ विशाखा युक्त अ एटी अप्रत्यय केउ अर्थ रे लागिछि विशाखा युक्त अ ये मध्य युक्त अर्थ क्षेत्र रे लागिछि युक्त अर्थ मन रखिबे युक्त अर्थ रे लागिछि जेतक हमर 12 मास समस्त सबु युक्त अर्थ रे अप्रत्यय लागिथो हला मघा युक्त अ माघ कृतिका युक्त अ कार्तिक एमती भाव में मन रखिया पई चेष्टा करिवो ठीक अछि परवर्ती प्रश्न नाविक देखंतु नाविक एठारे केउ प्रत्यय होइछि बोली कहिछि नाविक एठारे केउ प्रत्यय होइछि आपण माने संधि रे भी नाविक पड़थिबे नाविक रे कोन अछि आब अछि आब ना तो आब केमि थिबे ना नौ सहित नौ अर्थ औ सहित गोटे स्वर वर्ण मिसिबो इक नौ सहित इक मिसला नौ सहित इक मिसिले नाविक हबो तो एठारे नाविक एठारे केउ प्रत्यय होइछि अर्थ इक प्रत्यय होइछि नौ युक्त इक नाविक मन रहला तो एठी जो इक प्रत्यय जोग है प्रश्न आसो इक प्रत्यय केउ अर्थ रे जोग होइछि केउ अर्थ रे जोग होइछि आमे नाविक सी तार नौका चालन करी जीवन प्रतिपोषण करछि तो तार जीविका कोन तार जीविका होउछि नौ चालना करिबा तो नाविक होई जिबा हमर जीविका अर्थ रे इक प्रत्यय जोग होइछि ठीक है बुझियला परवर्ती प्रश्न को जिबा भौगोलिक केउ अर्थ रे इक प्रत्यय होइछि ठीक अछि भौगोलिक केउ अर्थ रे इक प्रत्यय होइछि भौगोलिक कहले भूगोल संबंध रे जे अध्ययन करूछंती भूगोल विषय रे भूगोल विषय रे जे अध्ययन करूछंती तो भौगोलिक कहंती तो भौगोलिक केउ अर्थ रे इक प्रत्यय होइछि हमरो अध्ययन अर्थ रे अध्ययन जो माने अध्ययन कहंती भूगोल विषय तब हमें भौगोलिक बोली कहिताउ तो अध्ययन अर्थ रे इक प्रत्यय होइछि परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि भिन्न भिन्न अर्थ रे शब्द सहित प्रत्यय जोग करा गले हम तो कोन कहिबा शब्द सहित जेतले प्रत्यय जोग करा जाय ताको हमें तद्धित बोली कहथौ
ठीक अच्छे शब्द सहित प्रत्यय जोग करागले आम ताको तद्धित बोली कहिथां। परवर्ती प्रश्न आ धातु सहित प्रत्यय जोग करागले आपण माने जानछन धातु सहित प्रत्यय जोग करागले ताको हमें रुदंत बोली कहिथां। मूल्य युक्त इया मूल्या एठी इया केउ अर्थ रे व्यवहृत होइछ इया प्रत्ययटी केउ अर्थ रे व्यवहृत होइछ श्रुति अर्थ रे सादृश्य अर्थ रे अतिशय अर्थ रे ना परिणाममान अर्थ रे देखंतु मूल्या मूल्यार काम कोन से काम करिवो ता वृत्ति होची मूल्य लागिबो तो एठी होइबो वृत्ति अर्थ रे इया प्रत्यय लागिछ। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा 17 नंबर प्रश्न निम्नक मध्य किए सो अर्थ रे व्यवहृत अप्रत्यय उदाहरण सो अर्थ रे अप्रत्यय व्यवहृत सो अर्थ रे अप्रत्यय कहले पाशव बांधव गौरव ना शारद देखंतु सो अर्थ रे अप्रत्यय जोग होइतबा शब्दटी होउची बंधु युक्त अ बांधव। ठीक अछि बंधु युक्त अ बांधव एटा भाबरे मन रखिबे सो अर्थ रे अप्रत्यय आउ जदि सो अर्थ रे अप्रत्यय मन रखिबे पय हुए आउ किछ एग्जांपल मन रखिबे विभव जोडे एग्जाम रे आसे विभव युक्त अ वैभव। ठीक अछि वैभव आउ कोन आसबो मनस मनस युक्त अ मन रखिबे मानस मनस युक्त अ मानस आउ कोन आसी परिबो एपरि भाबरे हमर बंधु युक्त बांधव अर्थात सो अर्थ रे व्यवहृत अप्रत्यय बोली हमें कहबा तो सठिक आंसर हैला ऑप्शन ख सठिक आंसर बांधव। परवर्ती प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कहिछि जे डैश प्लस अ वैद्य वैद्य जो तार प्रकृति प्रत्यय करा जाए वेद युक्त अ विद्या युक्त अ विद युक्त अ ना वैद युक्त अ तो सठिक आंसर यार कोन हिजबो ना विद्या विद्या युक्त अ कोन हिजबो ना वैद्य हिजबो यार सठिक आंसर विद्या युक्त अ वैद्य तो सठिक आंसर ऑप्शन ख हिजबो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन्तेय कौन्तेय पचारछि कौन्तेय केउ प्रत्यय हबो। ठीक अछि कौन्तेय एठी एठारे ए प्रत्यय होइछि ना इ प्रत्यय होइछि ना आय प्रत्यय होइछि कौन्तेय जे कुंतींकर पुत्र को हमें कौन्तेय बोली कहि थाउ कुंतींकर पुत्र को हमें कौन्तेय बोली कहि थाउ इयर आ काटे दे हां कौन्तेय कुंतींकर पुत्र कुंतींकर पुत्र को हमें कौन्तेय बोली कहि थाउ तो एठी को प्रत्यय लागिछि ना ए प्रत्यय लागिछि। ठीक अछि कुंती कुंती युक्त ए कौन्तेय कुंती युक्त ए कौन्तेय कुंती युक्त ए कौन्तेय। ठीक सेहि परि भाबरे राधा युक्त ए राधा युक्त ए राधेय। ठीक अछि राधेय का कहंती कर्ण को कहंती राधेय बोली हमें कर्ण को कहि थाउ। ठीक अछि तो एहि परि भाबरे सिमिति सुमित्रा जदि हम कहिबा सुमित्रा को पुत्र को सुमित्रा युक्त ए सौमित्रेय एहि परि भाबरे गोटे एग्जांपल सहित आउ 3-4 एग्जांपल को मन रखिए। ठीक अछि आज परवर्ती प्रश्न आज शेष प्रश्नटी मनस्वी एठारे थिबा प्रत्ययटी कोन चिन्ह मनस्वी ई प्रत्यय बी प्रत्यय सी प्रत्यय ना बिन प्रत्यय देखंतु मनस्वी आपण माने मन रखिबे मनस्वी को प्रकृति प्रत्यय करे कोन हो मनस्वी मनः मनः सहित जते बेला हमें बिन प्रत्यय जोग करंती। ठीक अछि मनः सहित जते हमें बिन प्रत्यय जोग करंती तो हमें मनस्वी बोली कहते से भली भाबे तेजस्वी तेजः युक्त बिन तेजस्वी मेधावी मेधा युक्त बिन मेधावी एहि परि भाबरे बिन प्रत्ययटी को भलो भाबरे पढि जिवे बिन प्रत्यय होची बहुत ही। ठीक अछि तो एहि परि भाबरे हम 20 टी प्रश्न को डिस्कशन कले 20 टी मध्ये बहुत सारा ऑप्शन को मध्ये आलोचना कले आउ एहि परि भाबरे को प्रत्यय पढि मु कहि देली एबे मु आपन को स्पेसिफाई कर दोची आपन तद्धित रे को प्रत्यय को अधिक मात्रा रे पढि जिवे क्यों अर्थ रे क्वेश्चन आथबो
ता ऊपर टिके ध्यान देके जिवे आपण माने मन रखिबे स्किप करिवेनी वीडियो को देखिबे देखंतु आपत्ति अर्थ रे प्रथमे प्रथम होची आपत्ति अर्थ अपत्य अर्थ रे ए जो अपत्य अर्थ रे जो प्रत्यय अछि एथिरे आपण माने कोन पढिबे अपत्य अर्थ रे आपण अ प्रत्यय पढिबे ई प्रत्यय पढिबे ए प्रत्यय पढिबे आउ य प्रत्यय एतक पढि कि जिबे मु मो आडो आपण मन को सजेस्ट करी पढिया पे आपण को इच्छा आपण पढिबे कि नै सब पढिले भलो किंतु एई गुडा को पढि गले आपण को माने 80% 90% आपण को पॉसिबिलिटी अछि क्वेश्चन याद आसपार ठीक अछि तो अपत्य अर्थ रे एतक पढिबे तापरे अच्छी अर्थ रे आपण माने पढिबे कोन ना आळु प्रत्यय प्रथमे आळु प्रत्यय पढिबे इन प्रत्यय पढिबे बत किंबा मत मु जोटा कहली बत किंबा मत प्रत्यय पढिबे आउ बीन प्रत्यय पढिबे एबे जोटा कहली आउ मोस्ट इंपोर्टेंट शालीन प्रत्यय ठीक अछि तो ये अच्छी अर्थ रे ए प्रत्यय पढिबे आउटे तापरे पढिबे भक्त बा उपासक अर्थ रे भक्त बा उपासक अर्थ ए प्रत्यय को छाड़िबे नाही उपासक अर्थ रे कोन पढिबे ना अ प्रत्यय पढिबे आउ य प्रत्यय पढिबे आउ कोन पढिबे ना आउट होची भाव संबंधी अर्थ भाव संबंधी अर्थ रे कोन पढिबे ना अ प्रत्यय पढिबे आउ य प्रत्यय पढिबे ठीक अछि भाव बा संबंधी अर्थ आउट अछि संबंध अर्थ रे कोन पढिबे संबंध सेटा थिला संबंधियो एटा हो संबंध अर्थ रे आपण मन पढिबे अ प्रत्यय पढिबे इक प्रत्यय पढिबे इ प्रत्यय पढिबे आउ य प्रत्यय पढिबे ठीक अछि आउ स्व अर्थ रे अ प्रत्यय केवल पढिबे आउ भाव अर्थ रे अ पढिबे ज पढिबे य पढिबे ठीक अछि आउ गोटे इंपोर्टेंट अछि वृत्ति अर्थ रे आपण माने पढिबे ज प्रत्यय आउ य प्रत्यय निमित्त अर्थ रे आपण माने य प्रत्यय को पढि ठीक अछि तो एई परि भाबरे किछि इंपोर्टेंट प्रत्यय को पढि कर जिवे आपण मन को देखिए एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल होबो मोर एटा सजेशन म आपण मन फोर्स करिनी आपण माने जेमती चाहिए पढि परिबे किंतु मोर एटा सजेशन अछि कि आपण एमती एटा एई प्रत्यय को पढि गले आपण मन को जो माने माने एजे रुदंत आउ तद्धित रे एजे हमरो कॉन्सेप्ट क्लियर हेई नांती बा एबे पर्यंत शॉक रे अछंती कि रुदंत तद्धित कि परि हार पढिबी तो म ताको पई शॉर्टकट टी कर देछि जे एति कि पढि जांत आपण मन को निश्चय सेथिरु क्वेश्चन आसी ठीक अछि तो आज रो क्लास टी जते आपण मन भलो लागिथो तो निश्चय होर लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे एवं जो माने नुवा करी हमर वीडियो को देखुछन चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे आउ लाइक मध्य करिवे ठीक अछि तो रहूची नमस्कार देखा हबो पुणी काली मॉर्निंग क्लास रे रहूची नमस्कार जय जय।